Chapter 29. Moreover, Job continued his parable and said, "Oh, that I were as in months past, as in the days when God preserved me, when his candle shined upon my head, and when by his light I walked through darkness, as I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle, when the Almighty was yet with me, when my children were about me, when I washed my steps with butter, and the rock poured me out rivers of oil, when I went out to the gate through the city, when I prepared my seat in the street. The young men saw me and hid themselves, and the aged arose and stood up. The princes refrained talking and laid their hand on their mouth. The nobles held their peace, and their tongue cleaved to the roof of their mouth. When the ear heard me, then it blessed me, and when the eye saw me, it gave witness to me. Because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him. The blessing of him that was ready to perish came upon me, and I caused the widow's heart to sing for joy. I put on righteousness, and it clothed me. My judgment was as a robe and a diadem. I was eyes to the blind, and feet was I to the lame. I was a father to the poor, and the cause which I knew not I searched out. And I brake the jaws of the wicked, and plucked the spoil out of his teeth. Then I said, I shall die in my nest, and I shall multiply my days as the sand. My root was spread out by the waters, and the dew lay all night upon my branch. My glory was fresh in me, and my bow was renewed in my hand. Unto me men gave ear, and waited, and kept silence at my counsel. After my words they spake not again, and my speech dropped upon them. And they waited for me as for the rain, and they opened their mouth wide as for the latter rain. If I laughed on them, they believed it not, and the light of my countenance they cast not down. I chose out their way, and sat chief, and dwelt as a king in the army, as one that comforteth the mourners. Chapter 30. But now they that are younger than I have me in derision, whose fathers I would have disdained to have set with the dogs of my flock. Yea, whereto might the strength of their hands profit me, in whom old age was perished? For want and famine they were solitary, fleeing into the wilderness in former time desolate and waste, who cut up mallows by the bushes, and juniper roots for their meat. They were driven forth from among men. They cried after them as after a thief, to dwell in the cliffs of the valleys, in caves of the earth, and in the rocks. Among the bushes they brayed, under the nettles they were gathered together. They were children of fools, yea, children of base men. They were viler than the earth. And now am I their song. Yea, I am their byword. They abhor me. They flee far from me, and spare not to spit in my face. Because he hath loosed my cord and afflicted me, they have also let loose the bridle before me. Upon my right hand rise the youth. They push away my feet, and they raise up against me the ways of their destruction. They mar my path. They set forward my calamity. They have no helper. They came upon me as a wide breaking in of waters. In the desolation they rolled themselves upon me. Terrors are turned upon me. They pursue my soul as the wind, and my welfare passeth away as a cloud. And now my soul is poured out upon me. The days of affliction have taken hold upon me. My bones are pierced in me in the night season, and my sinews take no rest. By the great force of my disease is my garment changed. It bindeth me about as the collar of my coat. He hath cast me into the mire, and I am become like dust and ashes. I cry unto thee, and thou dost not hear me. I stand up, and thou regardest me not. Thou art become cruel to me. With thy strong hand thou opposest thyself against me. Thou liftest me up to the wind.
Thou causest me to ride upon it, and dissolvest my substance. For I know that thou wilt bring me to death, and to the house appointed for all living. Howbeit he will not stretch out his hand to the grave, though they cry in his destruction. Did not I weep for him that was in trouble? Was not my soul grieved for the poor? When I looked for good, then evil came unto me, and when I waited for light, there came darkness. My bowels boiled and rested not. The days of affliction prevented me. I went mourning without the sun. I stood up and I cried in the congregation. I am a brother to dragons and a companion to owls. My skin is black upon me, and my bones are burned with heat. My harp also is turned to mourning, and my organ into the voice of them that weep. Chapter 31. I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? For what portion of God is there from above, and what inheritance of the Almighty from on high? Is not destruction to the wicked, and a strange punishment to the workers of iniquity? Doth not he see my ways, and count all my steps? If I have walked with vanity, or if my foot hath hasted to deceit, let me be weighed in an even balance, that God may know mine integrity. If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands, then let me sow, and let another eat. Yea, let my offspring be rooted out. If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbor's door, then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her. For this is an heinous crime, yea, it is an iniquity to be punished by the judges. For it is a fire that consumeth to destruction, and would root out all mine increase. If I did despise the cause of my manservant or of my maidservant when they contended with me, what then shall I do when God riseth up? And when he visiteth, what shall I answer him? Did not he that made me in the womb make him? And did not one fashion us in the womb? If I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail, or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof, for from my youth he was brought up with me as with a father, and I have guided her from my mother's womb. If I have seen any perish for want of clothing, or any poor without covering, if his loins have not blessed me, and if he were not warmed with the fleece of my sheep, if I have lifted up my hand against the fatherless, when I saw my help in the gate, then let mine arm fall from my shoulder blade, and mine arm be broken from the bow. For destruction from God was a terror to me, and by reason of his highness I could not endure. If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, Thou art my confidence, if I rejoiced because my wealth was great, and because mine hand had gotten much, if I beheld the sun when it shined, or the moon walking in brightness, and my heart hath been secretly enticed, or my mouth hath kissed my hand, this also were an iniquity to be punished by the judge, for I should have denied the God that is above. If I rejoiced at the destruction of him that hated me, or lifted up myself when evil found him, neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul. If the men of my tabernacle said not, Oh, that we had of his flesh, we cannot be satisfied. The stranger did not lodge in the street, but I opened my doors to the traveler. If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom, did I fear a great multitude? Or did the contempt of families terrify me, that I kept silence and went not out of the door? Oh, that one would hear me!
Behold, my desire is that the Almighty would answer me, and that mine adversary had written a book. Surely I would take it upon my shoulder, and bind it as a crown to me. I would declare unto him the number of my steps. As a prince would I go near unto him. If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain, if I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life, let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley. The words of Job are ended. अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29। अय्यूब ने और भी अपनी गुड़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, और उससे उजियारा पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था, और मेरे लड़के बाले मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था, और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते, और पुरनिये उठ खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते, और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे, और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता, तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता, तब मेरे विषय साक्षी देता था। क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नाश होने पर था, मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा, और वह मुझे पहने रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का न था, उसके मुकदमे का हाल मैं पूछ-पाछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता था, और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकी के समान अनगिनत होंगे, और अपने ही बसरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली, और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी। मेरी महिमा जो की त्यों बनी रहेगी, और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। लोग मेरी ही ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे, और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था, तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह की नाई बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की, वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे, और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए, वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती, तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता, और उनमें मुख्य ठहरकर बैठा करता था। और जैसा सेना में राजा व विलाप करने वालों के बीच शांतिदाता, वैसा ही मैं रहता था। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है, वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी नहीं जानता था, उनके भुजबल के मुझे क्या लाभ हो सकता था? उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे
दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेर और सुनसान स्थानों में सूखी धूली फाँकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की जड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंकते हैं और बिच्छू पौधे के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीच मनुष्यों के वंश के हैं, जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घीन खाकर दूर रहते हैं। वह मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने जो मेरी रस्सी खोलकर मुझे दुख दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरी दाहिनी अंगल पर बाजारू लोग उठ खड़े होते। वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए उनके उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं, वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा और अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती है और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ती। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुर्ते के गले की नाई मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दोहाई देता हूँ, परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ, परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है, क्योंकि मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दोहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजियाले का आसरा लगाया था तब अंधियारा छा गया। मेरी अतड़ियां निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। वे शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ, और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गिदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का साथी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे मेरी हड्डियां जल गई है। इस कारण मेरी वीणा से विलाप के और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 31। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा अंश और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता, और क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ व कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊंगा, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो
और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, व मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं, परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया है और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पीसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है, और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नाश कर देती है। जब मेरे दास व दासी ने मुझसे झगड़ा किया, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब परमेश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या वहां उसका बसाने वाला नहीं, जिसने मुझे गर्भ में बनाया? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में न रची थी? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, व मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हो, व मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ न खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़केपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूं। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, व किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हो, और उसने गर्म होकर मुझे आशीष न दिया हो, व यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाह पखौड़े से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, व कुंदन को अपना आसरा कहा होता, व अपने बहुत से धन का व अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, व सूर्य को चमकते व चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। यदि मैंने अपने बैरी के नाश से आनंद किया होता, व जब उन पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने न तो उसको शाप देते हुए और न उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह न कहा होता कि ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो, परदेशी को सड़क पर टिकना न पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, वह कुलीनों से तुच्छ किए जाने से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार के बाहर न निकला। भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर में बांधे रहता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रधान की नाई निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई देती हो और उसकी रेघारियां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरी दिए खाई व उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले झड़बेली और जौ के बदले जंगली घास उगे। अय्यूब के वचन पूरे हुए हैं।